Students, welcome to online tutorial classes. This online tutorial is for BSc IT SEM 4th student. The paper number is BITC8. The paper name is Web Technology. In previous class, we have studied about HTML, introduction about HTML. Today we are going into more depth into HTML. So in previous class we have learned what is HTML. That is, HTML stands for Hypertext Markup Language, which are usually used to design web pages. So let's get into further topics. आज हम लोग पढ़ेंगे HTML पेज स्ट्रक्चर के बारे में। HTML पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जैसा कि नीचे डायग्राम में देख सकते हो, HTML पेज का स्ट्रक्चर यहाँ डिफ़ाइन किया गया है। इसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं, जैसे मतलब बेसिक टैग्स हैं, जैसे HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग। ओके, सो सबसे पहला आता है HTML टैग। सो द HTML एलिमेंट इज़ द रूट एलिमेंट ऑफ एनी HTML पेज। कोई भी हम लोग HTML पेज डेवलप करेंगे तो उसमें सबसे ऊपर में क्या रहेगा, रूट पे क्या रहेगा, टॉप में HTML एलिमेंट रहेगा या HTML टैग। सेकंड इज़ द हेड टैग। द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। जो हम लोग HTML पेज नीचे हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे हेडिंग या उस पेज का टाइटल, ये सारे हम लोग किसके अंदर रखते हैं, हेड टैग के अंदर में। नेक्स्ट इज द टाइटल एलिमेंट। द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज ए टाइटल फॉर द HTML पेज। टाइटल टैग, टाइटल टैग के अंदर हम लोग जो HTML पेज का टाइटल है उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। एंड whatever is written inside the title tag is shown in the title bar of the browser. Okay, now comes the main part of the HTML, that is the body element. The body element defines the document's body and it contains all the visible contents such as headings, paragraphs, images, hyperlinks, टेबल्स, लिस्ट एट्सेट्रा। जो भी ब्राउज़र का हमको बॉडी में दिखेगा, चाहे वो इमेज हो, कुछ कंटेंट्स लिखा हो, वो सारा चीज़ हम लोग किसके अंदर रखते हैं, बॉडी टैग के अंदर। नेक्स्ट इज़ द हेडिंग टैग, दैट इज़ फ्रॉम H1 to H6। हेडिंग कितना से कितना तक रहता है, H1 से H6, जहाँ पे H1 जो है इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, मतलब उसका साइज बड़ा होगा, वेयर एज H6 इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, जिसका साइज सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट इज़ द P टैग। द P टैग इज़ यूज्ड फॉर पैराग्राफ। अगर कोई हम पैराग्राफ डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन पे, उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, P/P टैग के between. So the P element defines a paragraph. So this is the structure of a HTML page. Next is, what is an HTML element? HTML element क्या होता है? So an HTML element is defined by a start tag, then it is followed by some content and it ends with a end tag. For example, HTML, then so on, then /HTML. Okay, the syntax is tag name, then the contents, then /tag name. Okay, as you can see here. So the HTML element is everything from the start tag to the end tag. स्टार्ट टैग से लेके इन टैग, मतलब स्लैश जहाँ पे यूज़ करते हैं उस टैग के बीच में जो कुछ भी है वो हमारा क्या है, HTML एलिमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल
h1 my first heading slash h1. So this is a HTML element. Another example is we are writing a paragraph here. So we have written p my first paragraph slash p. So this is an HTML element. Now one thing to note here is to write an HTML code we can use Notepad in our Windows system. कोई भी अगर हम HTML पेज डेवलप करना चाहते हैं तो उसे हम लोग किस में लिखेंगे? अगर हमारे पास विंडोज़ का सिस्टम है तो नोटपैड के अंदर कोडिंग हम HTML का लिखते हैं, और ये रन करने के लिए HTML पेज को रन करने के लिए हमें कोई भी ब्राउज़र का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि HTML पेज हमेशा एक ब्राउज़र के अंदर रन होता है. नाउ to open the notepad and write the HTML coding, we need to go to start button, then programs, then accessories, then there you will find the notepad. Open that blank notepad and write the HTML code and then save it as filename .htm extension. Important thing here to note is HTML page has an extension .htm और .html. ये एक्सटेंशन बताता है कि हमारा पेज जो है वो एक HTML पेज है. ओके. Now how to view the HTML page you have created in your browser. So to view the HTML page in a browser, just open the saved HTML file in your favorite browser. It can be Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, any browser. Okay, or you can double click on the file, then it will open the HTML page in a browser, or you can right click and choose the option open with the browser name. So when you open a HTML file, the page will look like this as shown in the diagram here. Okay. Now there are different HTML elements. First is the HTML headings. HTML headings are defined with the H1 to H6 tags. Okay. HTML headings में कितने टैग्स आते हैं? H1 से लेके H6 तक. Where H1 defines the most important heading, मतलब जिसका साइज सबसे बड़ा होगा. Whereas H6 defines the least important heading, जिसका साइज सबसे छोटा होगा हेडिंग का. ओके. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया है. सो एग्जांपल देखो कैसे हम लोग HTML पेज क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है HTML टैग का. HTML टैग के अंदर फिर हमने यूज़ किया है बॉडी टैग का. बॉडी टैग के अंदर हमने एक स्पेसिफाई किया है हेडिंग H1. दिस इज़ हेडिंग स्लैश H1. कोई भी टैग स्टार्ट हो रहा है तो उसका एंडिंग टैग भी होगा. H1 को मैंने स्टार्ट किया तो उसका एंडिंग होगा स्लैश H1. फिर और एक हेडिंग लिखा है मैंने, दिस इज़ हेडिंग 2. और एक हेडिंग लिखा है, दिस इज़ हेडिंग 3. देन स्लैश बॉडी स्लैश HTML. यहाँ पे मेरा HTML का कोडिंग एंड हो गया है. अब हमको इसका आउटपुट कैसे मिलेगा? तो हमको आउटपुट ब्राउज़र में दिखाई देगा क्या? दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ हेडिंग 1. फिर सेकेंड लाइन में क्या आएगा? दिस इज़ हेडिंग 2, दिस इज़ हेडिंग 2. फिर थर्ड लाइन में दिस इज़ हेडिंग 3. जहाँ पे H1 के अंदर जो मैंने रखा है हेडिंग को वो सबसे बड़ा साइज में और बोल्ड में रहेगा. H2 उससे थोड़ा कम साइज में रहेगा. H3 उससे भी थोड़ा कम साइज में हमको शो होगा ब्राउज़र में. ओके. नाउ सेकेंड HTML एलिमेंट इज़ HTML पैराग्राफ, दैट इज़ P tag. HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विथ द P tag. किससे हम लोग डिनोट करते हैं? P tag से.
यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शो किया उसका भी, HTML बॉडी के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, क्या पी टैग के अंदर, दिस इज़ पैराग्राफ स्लैश पी, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ स्लैश पी स्लैश बॉडी स्लैश HTML। ये कोडिंग जो मैं बता रहा हूँ ये अपने नोटपैड में लिखना और इसको फिर .html या .htm एक्सटेंशन से सेव करना और फिर इसको अपने ब्राउज़र में रन करके देखना। तो देखना इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा हमको आउटपुट, दिस इज़ पैराग्राफ, फिर एक और हेडिंग आएगा क्या, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। ये हमको शो होगा हमारा पेज में या ब्राउज़र में। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि पैराग्राफ कैसे क्रिएट करते हैं, यूजिंग पी टैग से, p/p, जहाँ पे p है स्टार्टिंग टैग, स्लैश p क्या है एंडिंग टैग। उसी तरह से HTML का स्टार्टिंग टैग है /HTML, एंडिंग टैग है। बॉडी का स्टार्टिंग टैग है /body, एंडिंग टैग है। नेक्स्ट इज HTML links. How can we add link to our pages? Okay, so HTML links are defined with a tag. हम लोग अपने वेब पेज में लिंक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, यूजिंग ए टैग। ए टैग को यूज़ करके हम लोग लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है डॉक टाइप HTML। अच्छा, यहाँ पे डॉक टाइप HTML क्या है, ये बताता है कि ये जो पेज है ये किस तरह का पेज है, ये एक HTML पेज है। ओके, नेक्स्ट इज़ द HTML टैग। अब यहाँ पे मैंने अभी जितने एग्जांपल बताए हैं उसमें कहीं पे भी मैंने हेडिंग टैग का यूज़ नहीं किया है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और कंपल्सरी टू इंक्लूड heading tag. If you wish you can include, if you doesn't wish you can exclude it. Okay, so HTML body। now मैंने यहाँ पे एक टैग यूज़ किया है, क्या a टैग का, क्या लिख रहा है मैंने, AHREF, वेयर HREF का मतलब क्या होता है, HREF मीन्स हाइपर रेफरेंस। ये किसी लिंक को रेफ़र कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, HREF का फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस। सो AHREF इक्वल टू जो लिंक हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं उसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, जैसे http://www.kolhanuniversity.com। तो ये हमको एक लिंक हमारे पेज में शो करेगा, जिस पे हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो हमको वो पेज पे ट्रांसफ़र कर देगा। और यहाँ पे इसका नेम क्या है, दिस इज़ अ लिंक, और /a क्लोजिंग टैग। कभी भी लिंक ऐड करेंगे तो स्टार्टिंग टैग क्या होगा, a, और क्लोजिंग टैग होगा /a। फिर मैंने क्या किया, HTML बॉडी को क्लोज़ किया /body, फिर मैंने HTML को क्लोज़ किया तो मैंने यूज़ किया /HTML। ओके, तो हमारे ये जो आउटपुट है स्क्रीन पे वो कैसे आएगा, वहाँ पे इस तरह से आएगा। हमारा वेब पेज में क्या हमको लिखा रहेगा, HTTP, जो भी मैंने एड्रेस दिया है वो हमारा वेब पेज पे आएगा। अब जब हम इस वेब पेज पे क्लिक करेंगे तो हमको ये दूसरा पेज पे जो ये लिंक है उस पे हमारा पेज ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज HTML images. How to add images to our HTML page. So HTML pages are defined with IMG tag. क्या टैग यूज़ करते हैं, IMG SRC टैग हम लोग यूज़ करेंगे। वेयर SRC इज़ द सोर्स कोड, कहाँ पे है वो फाइल, उसका सोर्स क्या है वो। अल्टरनेटिव टैग ALT width and heights provides as attributes. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है डॉक टाइप HTML। ये क्या बता रहा है कि ये हमारा पेज जो है एक HTML पेज है। मैंने यहाँ पे HTML टैग का यूज़ किया, बॉडी टैग का यूज़ किया। अब बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या स्पेसिफाई किया, IMG, हमको एक पिक्चर ऐड करना है हमारा वेब पेज में। तो मैंने क्या किया, IMG SRC, SRC फुल फॉर्म इज़ सोर्स कोड, क्या है, सोर्स कोड। ओके, IMG SRC इक्वल टू जो पिक्चर हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं उसका मैंने यहाँ पे नाम स्पेसिफाई किया, वो पिक
किस फाइल से नाम से सेव है वो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। ALT क्या है? द ALT एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन एरिया इफ़ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। ALT हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? अगर हमारा स्लो इंटरनेट कनेक्शन के कारण या किसी और कारण से वो जो पिक मैंने ऐड किया था वो डिस्प्ले नहीं हो पाया, तो उस केस में जो ALT में हम लोग स्पेसिफाई करेंगे वो हमारा टेक्स्ट उस जगह पे डिस्प्ले होगा। नाउ विड्थ स्पेसिफाइज उसका इमेज का चौड़ाई क्या होगा, विड्थ क्या होगा, लंबाई क्या होगा, हाइट वो मैंने स्पेसिफाई किया है। ओके, देन स्लैश बॉडी स्लैश HTML। ठीक है, ALT यहाँ पे वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज द ALT मीन्स इफ बाय एनी रीज़न the image we have added is unable to display on the web page, then it will show the text specified in the ALT attribute. Okay, so that's it for today, student. Hope you have learnt about more details about HTML. If you have any doubt or queries, you can ask me in the comment section. Thank you.